A very good morning to all of you. Respected Principal, Professor S. C. Hale sir, Vice Principal, Dr. Shakib Ahmed, Dean of the Faculty of Commerce, Dr. Arif Anjum sir, IQAC Coordinator, Dr. Hamdani Rizwana ma'am, and our Honorable Keynote Speaker of today's program, Dr. Raghib Nadeem sir. I welcome you all in today's program, How to Face Interview. It's our pleasure, sir, to have you on this program. Now, I would like to request to our beloved Vice Principal, Dr. Shakib Ahmed sir, to present the welcome note for today's webinar. Dr. Shakib Ahmed sir. On behalf of MTV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, I, Dr. Shakib Ahmed, Vice Principal of the college, welcome all the participants to today's webinar on how to face interview. And special welcome, warm welcome to Dr. Raghib Nadeem sir for giving his precious time for this webinar. I hope today's webinar will achieve all the objectives. Thanks for inviting me for this welcome note. Thank you. Over to you, Abdullah. Thank you very much, Shakib sir. Now, I would like to request Professor Rahim Sheikh to give the aims and objectives of today's webinar. Professor Rahim Sheikh sir. Thank you, Abdullah sir. Mahatma Gandhi Vidya Mandir Arts, Commerce, Science College, Malegaon City. Competitive Exam and Career Guidance Cell, Career Counseling Cell has organized today a webinar on how to face an interview. Principal of our college, Shivananda Sihale sir. Dean of Faculty of Commerce, Arif Anjum sir. Vice Principal of our college, Dr. Shakib Ahmed sir. Academic Head and CEO, Dr. Mubin Nazir sir. IQAC Coordinator, Dr. Hamdani Rizwana ma'am. And today's speaker, Dr. Raghib Nadeem sir. I am here to present the aims and objectives of today's webinar. This webinar has been arranged by Competitive Exam and Career Counseling Cell to guide and to prepare the students of our college for the interviews. This webinar has been arranged to guide the students and to make aware them about the interview skills. The aim of the webinar is to equipping all the students of our college of presenting themselves and presenting their resumes in interviews. So, to enable the students to evaluate their understanding of interview skills. So, what are the do's and don'ts that the students should take care of while going for an interview? So, in this webinar, all the students are going to benefit and get knowledge about how to face an interview, in which our speaker will talk and how the importance of the personality development, the importance of appearance of the students or candidates while facing the interview, their language and level of confidence, all resume preparation, all these things are very important, and these things are going to be give knowledge about this. Today's speaker, uh, Dr. Raghib Nadeem sir, is going to give us, and I have no doubt that all these objectives put forward by the Competitive Exam and Career Counseling Cell
is going to be fulfilled in this webinar. Thank you so much. Abdullah sir, over to you. Thank you very much, Professor Rahim Sheikh, sir. Now it's time to introduce our honorable keynote speaker of today's webinar, Dr. Ragib Nadeem, sir. He is the head of the Department of Applied Science in Mansoura College. He has completed his BSc in Mathematics from Aligarh Muslim University. He has also completed his Masters from Aligarh Muslim University and the MPhil and PhD from the same institute. Sir, we are really lucky that you have spent some time with us on this topic. We are very grateful that you are among us to share your views and your valuable guidance for our students. We are very grateful to you that you share your time, your precious time with us. We already know that you have a very busy schedule. In spite of that, you have honored our request and you are very great personality among all of the faculty members. Now I would like to request Dr. Ragib Nadeem sir to present his views on the topic of today's webinar, how to face interview. It will very helpful. Definitely it will very helpful for our students. Sir, I would like to invite you to enlighten us with your valuable guidance. Over to you, Dr. Ragib Nadeem sir. Thank you, sir. Thank you, Ansari Abdullah, sir, for giving a nice introduction. At the outset, I would like to thank Mahatma Gandhi's Arts, Commerce and Science College for giving me this wonderful opportunity to speak in this webinar on the topic how to face an interview. In this regard, I would like to thank Principal Shivanand C. Hale sir, Dean and GV's Faculty of Commerce Dr. Arif Anjum sir, and Vice Principal Dr. Shakib Ahmed sir. Also Academic Coordinator Nazir sir and IQAC Coordinator Rizwana Hamdani ma'am. Now I will start my presentation. Okay. The topic of this today's webinar, how to face an interview. I hope that everyone is aware about the great reformer, social activists, great philosopher, Sir Syed Ahmad Khan. One of the quote is, ignorance is mother of poverty, the quote at the end of the quote. We start today, we are starting with this quote that ignorance, किसी भी चीज़ को नहीं जानना, is the mother of poverty, यानी गरीबी की इब्तिदा है. So therefore we should aware all of the things that we are coming across in this world. We know, we must aware of that things. So today we will discuss about how to face an interview. This is very important part of the life. Now, firstly, we just introduce briefly of the interview. An interview is a two-way exchange, a conversation in which both participants have some goals. Interview basically exchange है, दो conversation के बीच दो participants हैं. One of the person will come in the field to face the interview, and one of the person is available, okay, to conduct the interview. The interviewer wants to determine, can the candidate do the job? Will the candidate fit in? Is this the best candidate for the position? जो इंटरव्यूअर जो चाहता है वो ये कि जिस जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट किसी कंपनी ने इसको एडवर्टाइज किया है, क्या जो कैंडिडेट आया है क्या वो जॉब कर सकता है कि नहीं. द फर्स्ट थिंग्स इज रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरव्यूअर और दैट कंपनी. विल द कैंडिडेट फिट इन, क्या कैंडिडेट फिट है इस इंटरव्यू, इस जॉब के लिए,
इट मीन्स दैट जो जिस जॉब का एडवर्टीजमेंट निकला है क्या इस जॉब के लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी कॉलेज में फिजिक्स की पोजीशन निकले और एक मैथमेटिक्स का बंदा पहुंच गया तो अनफिट बेसिकली। और कोई कैंडिडेट बहुत दूर से ट्रैवल करके आया तो दैट इज सूटेबल, अकोमोडेट कर पाएगा इस सर्कमस्टांसेस में, उस कॉलेज में है कि नहीं, दिस हैज टू बी डिसाइड बाय द इंटरव्यू। इज दिस द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोजीशन? कि there are so many candidates arrived in that particular job to face an interview, but this candidate is one of the best candidate, the best one candidate ये है कि नहीं उस पोजीशन के लिए। the three maybe the three one of the three criterias in view of the interviewer, ये तीन चीजें इंटरव्यूअर फाइंड आउट करता है कैंडिडेट के अंदर। Now, let us see what should the preparation to face an interview. क्या preparation होनी चाहिए? Before going to interview, we must have prepared something. Firstly, you should have a briefcase, a portfolio containing the following. कि आपके पास एक छोटा पोर्टफोलियो हो या एक ब्रीफकेस हो जिसमें समथिंग, कुछ चीज़ें अपने पास एट दैट टाइम हमें रखनी चाहिए। ए नोट पैड, वन पेंसिल एंड ए पेन, एक्स्ट्रा रिज्यूमे एंड डिफरेंट शीट। रिज्यूमे लेके गए, मालूम है एक लेके गए, बट जो इंटरव्यूअर कमिटी ऑफ द इंटरव्यू एट दैट टाइम इज अवेलेबल 4 पर्सन, बट यू हैव ए रिज्यूमे 1। अब एक रिज्यूमे आप एक आदमी को देंगे जो एक इंटरव्यू, बट रेस्ट ऑफ देम ये तो बच गए। देयरफॉर वी शुड थिंक अबाउट कि हमें एक से ज़्यादा रिज्यूमे लेके जाना चाहिए हमेशा। ऑल्सो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। व्हाट इज द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, दोज लेटर्स इन विच one your principal or vice principal, your class teacher has recommended regarding to you, कि आपके बारे में उन्होंने कुछ रिकमेंड किया हो, आपकी एकेडमिक कैरियर के बारे में, आपके एकेडमिक ब्राइटनेस के बारे में, आपके उसके अंदर बेसिकली स्पेशलिटी डिस्कस की, तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमारे पास इफ इंटरव्यूअर डिमांड्स देन वी कैन गिव इट। तो कोई अगर मांगता है इंटरव्यूअर तो वन कैन गिव इट, तो हम दे सकते हैं। वो हमारे पास लेटर रिकमेंडेशन होने चाहिए। एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट, सारे सर्टिफिकेट्स के जेरॉक्स कॉपी वो हमारे पास एक्स्ट्रा में होने चाहिए। ओके, सारे फ्रॉम 10 अप टू द मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री। ओके, वर्क सैंपल क्या है? किसी ने अगर बीएससी में समन ट्रेनिंग की है 2 महीने की, कोई आईआईसी बैंगलोर गया, मैथमेटिक्स से बीएससी कर रहा है, वो 2 महीने की समन ट्रेनिंग करके आया। कोई जो है सीडीआरआई लखनऊ गया, किसी के बायोलॉजी पे बीएससी इन बायोलॉजी यानी फिजियोलॉजी कर रहा है, जो भी वो जाके 2 महीने समर ट्रेनिंग, वो रिपोर्ट बेसिकली वर्क सैंपल दैट वन हैज डन दिस जॉब इन द फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, बेसिकली ये आदमी ने ग्रेजुएशन में स्टूडेंट ने किया है, वो वर्क सैंपल हमारे पास होने चाहिए। सिमिलरली द मास्टर्स में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और 2 महीने का जैसे कोर्स कराते हैं, 2 महीने की ट्रेनिंग करने चले गए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर टाइपर, वहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग मास्टर्स में करने चले गए, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो वो सारी रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए, सो दैट वी कैन डिस्कस विद इंटरव्यू आवर क्वालिफिकेशंस एज वेल एज आवर क्वालिटी। ओके, दैट वर्क सैंपल हमारे पास होने चाहिए। One has to prepare these things. Okay. Now, what is the important points and what is the important keys to a person to be a good interview? Are you ready? Yes. Research the company, know where you are going. जिस कंपनी में हम जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहले उसको हम रिसर्च करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कंपनी क्या है, किस चीज़ के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का नाम पूछ देते हैं, आप इस कंपनी का नाम बता दीजिए। जैसे आप क्या कोई इंटरव्यू देने आए MGB's आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, एंड वन ऑफ देम आस्क्ड बाय द कैंडिडेट व्हाट इज द फुल फॉर्म MGB's. If one does not know about these things, then that's a bad impression
इन व्यू ऑफ द इंटरव्यूअर्स। ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आप जिसके बारे में जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में मालूम ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं आप, वो किस चीज़ की कंपनी है, वो किस चीज़ का कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, उसके अंदर कितने फैकल्टीज़ हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितना कैंपस है। तो वन शुड नो इच एंड एवरी थिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और दैट पर्टिकुलर कॉलेज जहाँ हम लोग जा रहे हैं। Don't be late. So the starting point at which time you have to arrive at that place, जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पे कितने वक्त पहुँचते हैं। बी इन टाइम, डोंट बी लेट। आप हमेशा वक्त पे लेट नहीं होना चाहिए। दिस इज द की। ड्रेस टू इम्प्रेस, वॉट एवर वी वॉट एवर वन हैज़ टू ड्रेस, वॉट एवर वन हैविंग अ ड्रेस, जो भी कुछ आदमी पहने हुआ है, वन okay, that should be impressive, just like a formal dress. We should use the formal dress during the interview. Bring your resume. This is very important things. You should bring with your resume during interview. Do research, okay, and prepare your answers. Generally, we know that one has no to what is the questions arised by the interviewer. Generally, one should know. But what is the answer? इट शुड बी प्रिपेयर्ड। वो हमें तैयार करना चाहिए। मालूम है कि क्या क्या पूछा जाएगा, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, हम क्या कर, अभी तक हम कहाँ पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, हमने कौन से कोर्सेज किए हैं, हमारे कितने परसेंटेज हैं। बट हाउ कैन आई एक्सप्रेस आवर क्वालिटीज़ एंड आवर क्वालिफिकेशंस, एक्सप्रेस कैसे करना है, वन शुड नो एंड वन शुड प्रिपेयर दोज आंसर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वो चीज़ पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए। चाहे तो दो फ्रेंड मिलकर के आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लें और फिर एक दूसरे को तैयार करें। लेट अस सी वी डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स हाउ टू इंट्रोड्यूस। ओके, नाउ रिसर्च द कंपनी, हाउ टू सर्च द कंपनी। ओके, देयर आर सो मेनी materials, so we can say there are so many things are available to search the company. First, the website. What the website of this company? You go to the Google and put the type the name of the company in the Google, and you can find that particular website of that company. आप आसानी के साथ वेबसाइट से उस कंपनी के बारे में मालूम कर सकते हैं। And social media also, in the website each and everything is mentioned. If anything is missed, then maybe it will be obtained from the social media, because there are so many companies are available having a web page in the social media like Instagram, Facebook, okay, LinkedIn, okay। तो आप इन सब पे इसके वेब पेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर कि इस कंपनी का वेब पेज क्या है, पर्टिकुलर कंपनी का कौन कौन सा वेब पेज है, उस पर कौन कौन से इसके कि इसके स्पॉन्सर कौन कौन है, इसका सीईओ कौन है, ओके। अब कोई कॉलेज है उसकी सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग you can find in the social media updates, news updates. Whenever one go to the company to face the interview, you should know what is the updates of that of the company. क्या क्या कंपनी के अपडेट आए हुए हैं कि कंपनी अब कहाँ चल रही है, उसका क्या मामला चल रहा है। कुछ न्यूज़ अपडेट्स आते हैं, गूगल न्यूज़, यू कैन फाइंड फ्रॉम देम। ऑल्सो you can find the social media. So we should know what is the updates of that company. Recruiter, who is the recruiter of the company? Okay, we should know, हमें जानना चाहिए कि इसका रिक्रूटर कौन है। डोमेन, क्या डोमेन है कंपनी का। जैसे हम जैसे आपके यहाँ महात्मा गांधी कॉमर्स आर्ट्स साइंस कॉलेज, it is very clear that one of the engineer will not come in your college. कि आपके यहाँ कोई एक इंजीनियर बीटेक करके नहीं आएगा कि मुझे पढ़ाना है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर टू शो दैट कि दिस इज बेस्ड ऑन द साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो डोमेन किस सेक्टर का ये है, कंपनी आईटी सेक्टर की है, कंपनी मैकेनिकल की है, सिविल की है, ओके। वी शुड नो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दैट कंपनी।
Now, let us start uh, to face the interview. अब हम जब इंटरव्यू में जब जाते हैं, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्टली one arrive the place interview, one should arrive the interview place or that place, a particular place, be in time. कि हमेशा जहाँ जाना है वहाँ आदमी वक्त से पहुँचे, टाइम से, not be late, because first impression is the last impression. If someone is arriving late during interview, then how can the interviewer expect you will come in the company be in time? Because जब आपके पास जॉब नहीं है तब आप लेट पहुंच रहे हैं, तो जब हम आपको जॉब दे देंगे तो क्या इसका एक्सपेक्टेशन है कि आप वक्त पर आएंगे और काम करेंगे, बी इन टाइम रहेंगे? बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. बिकॉज क्या होता है ना, जब भी आप कहीं भी जाएंगे, अपना रेज्यूमे डालेंगे किसी भी, चाहे कॉलेज में, कंपनी में, तो उससे पहले एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसका एक टाइम होता है कि 9 से 10 वेरिफिकेशन प्रोसेस है. आफ्टर 10 इंटरव्यू विल बी स्टार्ट. ओके, तो अब 9 से 10 के बीच में तो हम पहुंचे नहीं. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि 9 से 10 के बीच में पहुंचे और उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू वेरिफिकेशन उसने एक ऑर्डर अरेंज कर लिया, जैसे जैसे जो वेरीफाइड था उसके अकॉर्डिंग उसने सीरीज बना ली. तो फिर इसको बुलाना, देन दिस अ क्यू हैज बीन अरेंज्ड, एक क्यू बन गया. तो वेरिफिकेशन हो गया, फिर आदमी इधर उधर वक्त जस्ट लाइक वेस्टिंग, बिकॉज सो मेनी टाइम्स कैंडिडेट्स 100, बट हमें दोनों चीजें ख्याल रखें, वेरिफिकेशन भी और टाइम पर वहीं बैठे हैं, हिलना नहीं. बिकॉज हम जिस काम के लिए आए उस काम को पहले करें. ओके, इट्स पंक्चुअलिटी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस. नाउ what will the dress code in the interview? ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू में जाने के लिए? मेल का क्या होना चाहिए, फीमेल का क्या होना चाहिए? Let us see when we discuss the female candidate. Now we start the hairstyle, very neat professional hairstyle and very light makeup. It should be preferable if one doesn't wear the jewelry. If it is so, then little bit. Okay, the cloth will be cotton kurti. It is preferable, and kurti will be full or half sleeve according to your choice. The color will be the color of the cloth is just like a conservative plus light color will be preferred. But the length of the kurti, it will be around knee length is preferable. Leggings is doctor. And shoes will be professional shoes, not high heel, just like it's not the preferable shoes. High heel, just like very conservative shoes. That is usually we go to the school and we go to the college with that to wear that particular shoes. We use just. Okay. Now we come to the male. किसी भी स्टूडेंट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए क्लासिक नेकटाई होना चाहिए, क्लीन प्रेस टी शर्ट होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और प्रेस किया हुआ. okay? और क्लासिक बिजनेस सूट हो तो बेटर है. अगर किसी के पास क्लासिक बिजनेस सूट नहीं है तो कुछ नहीं, एक फॉर्मल जो पैंट शर्ट पहनता है आदमी वो पहन ले. और ऐसा नहीं कि बिल्कुल मार्केट से नया खरीदा और पहन लिया, बल्कि अगर कोई बिल्कुल किसी के पास नहीं, नया खरीदा उसने, तो उस नए वाले को ड्राई क्लीन कराए, यानी तो एक बार वॉश कर ले तब पहने. क्योंकि जो नया मार्केट में नया ड्रेस खरीद के आता है उसके ऊपर एक अलग तरीके का कफ रहता है और दिख जाता है कि नया ड्रेस है, बिल्कुल न्यू खरीद के लाया है. इट शुड नॉट प्रीफर. सो क्या है कि नया लेकर के आ रहे हैं तो उसको पहले ड्राई क्लीन कराएं. सो नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ड्रेस कोड ऑफ द इंटरव्यू. और हेयर कट बिल्कुल क्लीन, नॉट स्टाइलिश हेयर कट ड्यूरिंग whenever you go to the interview. A very clean haircut, just like a formal. Okay, must having a resume, a professional pen, a notebook. Okay, this is some things regarding the dress code. We have to prepare all these things. ये सारी चीज़ें हमें तैयार होकर जानी चाहिए, because dress code is बहुत मैटर करता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं. और एक इम्प्रेशन का ये मतलब इम्प्रेशन, बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है. ड्रेस कोड से भी इंटरव्यू जज कर लेते हैं कि
तो व्हाट इज द क्वालिटी और हमारे सोचने का और समझने का क्या नज़रिया है ना। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के जब इंटरव्यू के दौरान जब आपसे कहा जाए कि बैठिए, तो आदमी किस पोस्चर पे बैठा होगा, कैसे बैठना है, ये बॉडी लैंग्वेज भी डिसाइड करता है कि आपके अंदर जो यानी कि क्या आपके अंदर क्वालिटी है और क्या आपके अंदर समझ बूझ है। ये समझ में आता है कि बैठने का भी पोस्चर कैसा, हम फिर आगे स्लाइड में बताएंगे बैठना कैसे है। ओके, बॉडी लैंग्वेज इज फॉर्म ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों चीज़ें फिजिकल और मेंटल। इसमें बॉडी लैंग्वेज में कोई बातचीत नहीं होती, नॉन वर्बल communication, but just like you have to sit in particular place, but how to sit is very important. Okay, body posture, gesture, facial expression. That body language comprises these things: body posture, gestures, and facial expression, eye movements. क्योंकि body language and non-verbal communication can let interviewers know more about you than what you tell them. कि आपके बॉडी पोस्चर से आप कैसे बैठ रहे हैं, आपका जेस्चर कैसे, यानी कि जब आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल पूछा जाए तो आपके हाथ से इशारा करने को जेस्चर कहते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। जैसे आपने सही जवाब बताया लेकिन उनकी तरफ से इंटरव्यू ने बिल्कुल डिनाई कर दिया, तो फिर आपके चेहरे पर क्या उसका एक्सप्रेशन पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आई मूवमेंट कि वेन एवर इंटरव्यू आस्क समथिंग टू यू, okay, you must give the answer with continuously eye contact with them. उनके साथ आप लगे बिल्कुल आई कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि आप दीवारों को देख रहे हैं और वॉट एवर द थिंग्स आर अवेलेबल इन दैट रूम, पर्टिकुलर रूम, यू आर सीइंग इन दैट थिंग्स। आप उन सब चीज़ों को देख रहे हैं जो उस रूम के अंदर रखी हुई है, रादर देन आप इंटरव्यूअर की तरफ आपकी नजर। तो आई कांटेक्ट, आई मूवमेंट्स हर तरफ होना चाहिए। आपसे 4 पैनल इंटरव्यू है, मान लो कि आपके पास 4 इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, एक ने क्वेश्चन पूछा, व्हेनेवर यू आर रिस्पॉन्डिंग, तो आपको हर तरफ आई मूवमेंट करके आपको बताना। दिस इज डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज दैट वी विल कम अक्रॉस। ओके, नाउ दिस इज द 2 पोजीशन, वन इज द राइट एंड वन इज द रॉन्ग, वन ऑफ द हियर the position is right, the location of the arms, देखिए इसका हाथ कहाँ, legs कैसे, hands कैसे रखे हुए हैं, as well the manner of sitting or standing can tell you a lot। आप देख सकते हैं और बता सकते हैं बिल्कुल क्लियर। ये टेक लगा के नहीं बैठना है, हाथ आपका बिल्कुल और पाँव एकदम सीधा, मतलब जो नॉर्मल पोजीशन होती है बैठने की उस तरीके से बैठना। और एक क्या है, इस पोजीशन को कहते हैं स्लाउचिंग पोजीशन। It's a negative. ये slouching यानी टेक लगा के बैठ रहे हैं, that is called slouching position. This is not good. This will create a negative impressions in view of the interview. बहुत ही negative impression करता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके सामने आपसे हाई क्वालिफिकेशन के, हायर क्वालिफिकेशन वाले सामने बैठे हुए हैं और आप इस तरीके से बैठे, तो इट मे बी क्रिएट नेगेटिव इंप्रेशन। आई कॉन्टेक्ट, देखिए आई कॉन्टेक्ट, आईज कैन रिवील मूड्स एंड फीलिंग्स एंड इंटेंशन एंड इंटरेस्ट। कि जब हम इंटरव्यू के दौरान अपने किसी भी इंटरव्यू में कोई सवाल पूछा और हम जवाब दे रहे हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट हमेशा सबके साथ होना चाहिए। वही हमने पहले ही बताया कि इंटरव्यूअर के साथ मुस्तकिल, यानी यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट विथ योर इंटरव्यूअर्स। नाउ हैंड गेस्चर्स, आपको इंटरव्यू के दौरान अपने हैंड गेस्चर्स के जरिए कैसे जवाब देना है। एक तो बहुत ज़्यादा आदमी हाथ फैला फैला के जवाब दे रहा है और मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, नो, इट इज़ नॉट बेटर। जहाँ ज़रूरत है उतना ही हैंड गेस्चर करें। ओके, दैट इज कॉल्ड, इट इज ए विटल रोल इन अ बॉडी लैंग्वेज। ये गलत है, ऐसे उंगली से इशारा कर रहा है बहुत हल्के से, मतलब ऐसा लगे कि जैसे यू आर जस्ट लाइक यू नो मैनर्ड, आप ऐसे ट्रीट हो कि यू शुड यू हैव ए मैनर, कि आपके पास एक मैनर है, बात करने का तरीका है कि हम अपने एल्डर से कैसे बात करते हैं। इंटरव्यू बेसिकली ये भी एटिकेट्स चीज़ें हैं। ब्रीथ, इसलिए जो द फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस्ड कि डोंट बी लेट। अगर आदमी लेट पहुंच रहा है तो कैसे पहुंचेगा, ब्रेथ उसकी नॉर्मल होगी, एबनॉर्मल। ऑब्वियस है कि आदमी ब्रेथ जो है एबनॉर्मली करेगा, तेज तेज, और फिर क्या होगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका सही जवाब देगा। वेरी नॉर्मल ब्रीथ। नॉड योर हैंड, नोड योर हैंड, हेड,
इसका क्या मतलब है नोड योर हेड? मतलब हर सवाल के जवाब में उसने सर हिलाया, जी ये जानते हो, जी नो नो, यानी हमें जबान हिलानी है, हमें जबान से कहना है, वी शुड स्पीक फ्रॉम आवर टंग रादर देन टू नोट आवर हेड, इज नॉट बेटर। कभी भी इंटरव्यू में हमें एक्सप्रेस करना है अपनी चीजों को, अपने सर हिला करके जवाब नहीं देना, इट्स नॉट प्रेफरेबल। और बात के दरमियान जैसे आदमी whenever you come to the interview room with a smiling face, बहुत ही हल्की से स्माइलिंग, ऐसा नहीं कि बार बार ही आप हमेशा स्माइल किए जा रहे हैं और जो है मतलब वो भी समझेंगे क्यों स्माइल कर रहे हैं बार बार, यानी कि जिस बात पे भी स्माइल नहीं करना चाहिए आप स्माइल किए जा रहे हैं, नहीं, बहुत ही जहाँ जरूरत है वहाँ स्माइल, नहाने की कोई जरूरत नहीं। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट, ये स्माइलिंग फेस कॉन्फिडेंट शो करता है, ड्रेसिंग कॉन्फिडेंट बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, जितनी अच्छी ड्रेसिंग होगी उतना कॉन्फिडेंट रहे। ओके, आदमी साफ सुथरा लिबास पहन के जाएगा, सही से बैठेगा, कॉन्फिडेंट मूड में रहे, अदरवाइज क्या है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जस्ट लाइक। Now, these overall, what we have told so far, which makes a good impression, is as given there. Given here, be there on time, put your mobile phone on silent or cut off, smile, be confident, posture and body language. Okay, these all are things. These are the things. They are those things that one has to maintain. Okay? One has to care these things. ये केयर करना जरूरी है। ओके, नाउ ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? व्हाट इज दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट? Wait to be asked to sit and where to sit. Whenever you come in the interview room, जब आप इंटरव्यू के कमरे में आएंगे जहाँ इंटरव्यूअर हैं, जहाँ पैनल बैठी, तो ऐसा नहीं कि सामने कुर्सी रखी है चेयर और आप आए और फौरन बैठ गए, नहीं। When you come, enter in the room, you will get the permission, आप परमिशन लेंगे पहले। May I come in, sir? Yes, come in. Then you should stand up. आप खड़े लीजिए, नॉट टू सिट, जी सिट डाउन, तो फिर बैठ जाइए। कहाँ बैठना है वो कहेंगे, वहां बैठ। ऑफर्स टू शेक हैंड्स ओनली द इंटरव्यू एक्सटेंड्स द ऑफर फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यू के दौरान जब तक इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको ऑफर नहीं करे तब तक आप हैंडशेक नहीं करें। वो अगर ऑफर कर रहे हैं तो फिर हैंडशेक। तो फर्स्ट कौन ऑफर करेगा? इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर offer you to shake your hands, otherwise this will not from your sides. Okay, do not fidget with your mobile phone, accessories or the gadget during the day. Fidget कहते हैं मोबाइल को जो आदमी चलाता नहीं लेकर ऐसे करके मोबाइल चलाता, फिजिट कर रहा, और अदर गैजेट्स के साथ इंटरव्यू, यानी कि अगर पेपर वेट रखा हुआ टेबल पे तो उसके साथ आदमी प्ले कर रहा है, पेन है तो पेन को रोटेट कर रहा है। These are those activities which creates a bad impression in view of the interviewer mind. ये सारे bad impression नहीं, ये यानी कि it should be prohibited, बिल्कुल मना है उन्होंने। Be concise what you say when you are asked a question. Clear and honest answer is expected. ये बात हमेशा ख्याल रखनी है कि अपनी बात को कंसाइज वे में करें। जो सवाल पूछा जाए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके क्लियर और ऑनेस्ट जवाब देना। तो जब आदमी क्लियर और ऑनेस्ट जवाब देता है तो फिर जो इंटरव्यूअर है वो भी दिख जाता है कि आपने सही जवाब दिया। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी पेज एंड इट शोज, यही चीज मैंने यहाँ लिखी कि अगर आप ईमानदार होंगे तो जो इंटरव्यूअर है आपकी ईमानदारी उसको नजर आएगी, दिखेगी। ठीक है, बी प्रिपेयर विद एग्जाम्पल्स टू बैक अप व्हाट यू से। This could relate to qualities you have, work you have done, or values that you hold dear. Let the example be simple and clear. आपने किसी बात को कहा, उसके लिए स्टोरी तैयार रखिए कि आप क्यों आए हैं। मैं आगे अपने स्लाइड में बताऊंगा। एक चीज तैयार रखिए बिल्कुल
कि हम क्यों आए हैं, उसके लिए कुछ स्टोरी बिल्कुल पहले से प्रिपेयर। आप ये काम क्यों करते हैं, आपने काम क्यों शुरू किया, आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी के लिए क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपको ही हम क्यों लें। These are those questions which we have to prepare before interview. ये सारी चीज़ें हमें बैकअप में तैयार करनी। Keep your guard up through sometimes. In our effort to be honest, we say too much or say things that might work against. Be both honest and wise. ये जो बात है ना, हमेशा चौकन्ना रहेगा। ऐसा नहीं हो कि ईमानदारी के चक्कर में वो सारी बातें बता दे जो हमें नहीं बताने चाहिए, जो उस कंपनी के खिलाफ थी, जो उस काम के खिलाफ थी, अगेंस्ट। इसलिए मैंने कहा बी बोथ ऑनेस्ट एंड वाइज। हमेशा ऑनेस्टी और वाइज ये दोनों चीजें, बिकॉज वी शुड कम हियर, वन शुड कम हियर टू गेट जॉब। हमें यहाँ जॉब लेने आए हैं। तो हाउ टू डिफेंड दिस, हाउ टू डिफेंड मी, कैसे मुझे अपना डिफेंस करना है इसके बारे में। आई एम द सुटेबल, आई एम द वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर योर कंपनी, फॉर योर कॉलेज, फॉर योर यूनिवर्सिटी। क्या हमें इसके लिए हमें ऑनेस्ट भी करना है, ऑनेस्टी भी दिखानी, और हमें वाइज भी होना है। तो उन सारी बातों को नहीं बताना। ओके, नाउ लेट अस सी, देयर आर सम थिंग्स। Okay, what so far we have discussed so many things during interview and before the interview, that all are concerned is called the business etiquette. This is the business etiquette. ये जो बातें हमने भी सारी बातें बताई आपको, कैसे इंटरव्यू में जाना, कैसे रहना, और कैसे बात करनी है, कैसे फेस करना है, उन सारी चीज़ों को बिजनेस एटिकेट कहते हैं। What is the business etiquette? Rules and conventions governing correct or polite behavior used in society in a particular social or professional group setting. Okay? These are called the business etiquette. Now, there are some things in the interview which we have to do and which have not to do. What do's and don'ts? Just let us see. चलो देखते हैं। स्माइल, पहली चीज है देखिए स्माइल, आदमी मुस्कुराए। स्माइलिंग विल प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव इमेज टू द लिसनर एंड विल चेंज द टोन ऑफ योर वॉइस। यानी जब स्माइल करके किसी बात का जवाब दिया जाए तो जो लेने वाला है, सुनने वाला है, लिसनर है या इंटरव्यू, तो उसकी वॉइस बदल जाए। तो फर्स्टली हमें स्माइल के साथ रहना। इंटरव्यू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, कभी भी अपनी बात को जल्दबाजी में नहीं करें, बहुत ही धीरे धीरे और क्लियरली, यानी ऐसी आवाज़ कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो सुन सके। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बात कही और आधी बात ख़त्म कर दी, अपने मुंह में हजम कर लिया, नहीं। इट शुड बी क्लियरली, हमेशा साफ, धीरे लेकिन साफ आवाज़ में बात हो। तो आवाज़ कैसी होनी चाहिए? इतना लाउड हो कि उस पैनल में इंटरव्यूअर अगर 4 है तो चारों को सुनाए, 3 है तो तीनों को सुनाई दे, अगर सिंगल हो रहा है तो उसको सुनाई। और धीरे धीरे, जल्दी नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ क्यों आए हैं? वन शुड कम हियर टू गेट जॉब। ओके, यूज द पर्सन्स टाइटल मिस्टर और मिसेस एंड देयर लास्ट। ओनली यूज द फर्स्ट नेम इफ दे आस्क यू टू। आप जिससे बात कर रहे हैं, जो इंटरव्यूअर है, कभी भी उसका नाम लेकर नहीं बोलना। फर्स्ट नेम नहीं, आप जानते नहीं है तो आप उनको मिस्टर कहेंगे, अगर फीमेल तो मिसेस कहेंगे, और लास्ट नेम देंगे। डोंट इंटरप्ट इंटरव्यू। जब इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई इसको क्वेरी है वो पूछ रहा है, देन वन शुड कीप इन द साइलेंट मोड, हमेशा खामोश। जब उसकी बात खत्म हो जाए इंटरव्यूअर की, तब आप अपनी पूरी बात सुनिए। ऐसा नहीं कि उसने आधी सवाल किया और आधा मालूम है आपको, ये आगे ये पूछेगा और आपने दिस नॉट बेटर। टेक योर टाइम, आप वक्त ले सकते हैं। जैसे आपको कोई सवाल पूछा इंटरव्यू ने, आपने कहा कि मैं 2 मिनट ले लूँ, आप ले सकते हैं वक्त इंटरव्यू में। ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते हैं, आप ले लीजिए जी, 2 मिनट सर मुझे दीजिए इसके बाद। 2 मिनट लिया आप, और 2 मिनट आपने सोचा उसके बारे में कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं और क्या एप्रोप्रिएट इसका आंसर। इट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल टू टेक अ मोमेंट टू कलेक्ट योर थॉट्स इन शॉर्ट आंसर। यही चीज मैंने लिखी है कि आप
2 मिनट ले लीजिए, 2 मिनट को सोच करके सही जवाब दीजिए, उसे जवाब चाहिए। और वो ऐसा नहीं है कि हर सवाल का फौरन जवाब आपके पास है, नहीं हो सकता। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे उसने पूछ दिया कि व्हाट योर फ्यूचर प्लान, लेकिन आपने अब तक सोचा ही नहीं इंटरव्यू जाने से पहले, तो उस वक्त सोच लीजिए क्यों आए हैं। इतनी क्वालिटी तो आदमी के अंदर होती है कि आदमी अपनी बातों को डिफेंस कर सकता है, इसलिए वी विल टेक टाइम। Remember, your goal is to set up face-to-face interview. After you think the interview, ask if it could be possible to meet in a person. देखिए आपका टारगेट क्या है, यहाँ पे इंटरव्यू देने आए। अगर वो कहता है कि आप मिल लीजिए मुझसे, मिलिएगा मुझसे बाद में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे पर्सनली मिलते हैं या नहीं मिलते। ओके, दिस इज योर ओन चॉइस। नाउ सम क्वेश्चन और आंसर्स have asked in the interview, some common questions. The firstly, let me about yourself. This is very important question. There are different way to convey of this word. Tell me about yourself. Someone will say, introduce yourself. Okay? हालांकि वो सारी बातें जान रहा, आपका रिज्यूमे उसके हाथ में वो देख रहा है और आपसे कह रहा है कि आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप। और कभी कभी ये कहेंगे कि आप जो रिज्यूमे में दिया हुआ उसके अलावा आप अपने बारे में बताएं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा क्या बताएं अपने बारे में, ये भी तैयार करके जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आया कि जो रिज्यूमे में वो तो मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा बताइए अपने बारे में कि आपका नाम है, आपकी डिग्री है, आप किस कॉलेज से के वो दिया हुआ, आपने कहाँ जॉब किया वो दिया हुआ। तो कौन सी चीज रिज्यूमे में छूटी हुई है जिसको हम इंक्लूड नहीं किए वो बताएंगे उनको। ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको लिख लेना चाहिए, यानी कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को आप लिख लीजिए, क्या क्या बोलना है, क्या उसके अंदर होना चाहिए। तो कभी भी उसके अंदर प्रोफेशनल हिस्ट्री होनी चाहिए। हम प्रोफेशनल तरीके से हम अपने बारे में बताएंगे। तो प्रोफेशनल में क्या चीज़ है, मैं कहाँ हूँ, मैं मेरा नाम क्या है। ओके, ऐसा नहीं कि लिखा माई सेल्फ राविन नदीम, जस्ट लाइक नो। ओके, माई नेम इज राविन नदीम। ओके, और डोंट से मिस्टर राघव नदीम। कभी ये मत कहिए कि जैसे मिस्टर लगा दिया अपने नाम से पहले, मिसेस लगा दिया अपने नाम से पहले, जस्ट यू से ओनली नेम। ओके, इफ यू आर डॉक्टर देन यू कैन से डॉक्टर, अदरवाइज नॉट। नेम आप कहाँ के वो बताइए, आपने डिग्री कहाँ से हासिल की, 10th से ऑनवर्ड वो बता दीजिए। आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिला, नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिला, स्कूल लेवल पे कोई अवार्ड मिला, वो बता दीजिए। और आपने कहाँ कहाँ काम किया वो बता दीजिए। आपने समर ट्रेनिंग किया वो बता दीजिए। आपने कोई कोर्स किया है कुछ ऐसा, किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2 महीने का कोर्स किया, किसी ने पाइथन का किया, कुछ अगर ऐसा लैंग्वेज आप जानते हैं वो बता दीजिए। जस्ट लाइक यू शुड टेल अबाउट योर प्रोफेशनल हिस्ट्री। हमेशा हमें प्रोफेशनल हिस्ट्री बताना, okay? और उसको कैप्टिवेट करना है, बैकग्राउंड इट पर्टिकुलर, और वो ऐसी चीज जो इस जॉब के साथ रिलेट हो जाए। okay? जैसे कोई किसी भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जाए तो बताना चाहिए कि आपने रिसर्च में क्या क्या किया, क्योंकि आप कॉलेज में आ रहे हैं। okay? और कॉलेज डिमांड्स द रिसर्च फ्रॉम योर फैकल्टी, so I am the very strong candidate in the faculty. Okay? और इसमें बहुत सारे लोग बताते हैं। एक हमारे फ्रेंड ने गया IIT लखनऊ इंटरव्यू देने के लिए, उनसे पूछा कि व्हाई यू ज्वाइनिंग ओवर हियर, आप यहाँ क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आप बताएं, आप क्यों इसके लिए मतलब डिजायर रखते हैं। तो उन्होंने कहा आई एम थर्स्ट फॉर रिसर्च, कि मैं रिसर्च का प्यासा हूँ। जवाब था, अलग अलग जवाब होता है। कौन बैठा है सामने, ये और भी चीजें बताएंगे। इन व्हाट वेज विल योर एजुकेशन और ट्रेनिंग हेल्प यू इन दिस पोजीशन, कि आपका एजुकेशन, जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपकी पोटेंशियल है, वो इस पोजीशन पे, यानी जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू, जो एडवर्टीजमेंट निकला आप उसके लिए इंटरव्यू देने आए हैं, वो कैसे वो सुटेबल है, कैसे हेल्प करेगी आपकी एजुकेशन इस पोजीशन में। आप अपने एजुकेशन के थ्रू इस पोजीशन को जस्टिफाई करें, ये बताना। क्या बताना इसमें, demonstrate your capacity to make practical applications of formal language and training.
आप अपने अंदर जो पोटेंशियल है, क्या उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कर सकते हो उस पोजीशन में, क्या कुछ कर सकते हैं, क्या आप प्रोवाइड करा सकते हैं, क्या बेनिफिट्स दिलवा सकते हैं, वो आप बताइए। तो ये सब चीज़ हमें प्रिपेयर करना चाहिए। जहाँ जा रहे हैं जाने, उस कंपनी के बारे में जाने, उस कंपनी का एचआर कौन है वो जाने, उसने कहाँ से क्या क्या वो जाने, उस कंपनी और कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं वो जाने। और किसी कॉलेज में जा रहा है, जिस डिपार्टमेंट में जा रहा है उस डिपार्टमेंट के एचओडी की फील्ड की है। जाहिर सी बात है मेरे फील्ड का, लेकिन वो अलग अलग फील्ड्स होते हैं। कोई मैथमेटिक्स में तो कोई एनालिसिस में कर रहा है, कोई फंक्शनल एनालिसिस में कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कर रहा है, कोई रियल एनालिसिस में कर रहा है, उसकी पर्टिकुलर फील्ड किया है रिसर्च। वो सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बल्कि और अगर हम बात करें कॉलेज की, तो आप बीएससी को पढ़ाने के लिए आए तो आपसे पूछ, क्या बीएससी का सिलेबस आपने देखा? आपने सिलेबस देखा कितने यूनिट्स हैं इसके और कितने क्रेडिट का कोर्स चलता है यहाँ पर? ये सब चीज़ें पहले हमें प्रिपेयर करनी। ये चीज़ बताएं, वाई डू यू स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, कि आप क्यों पर्टिकुलर इस फील्ड के, ये जो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो आप आए हैं पर्टिकुलर फील्ड के लिए, आप ही क्यों स्पेशलाइज, आप क्यों डिजर्व क्या? पॉलिसिट्स क्लूज अबाउट बेसिक वैल्यू सिस्टम, आप बताइए उनको कि हम कितने इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपनी क्वालिटी से, अपने अचीवमेंट से। वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर, हमें जस्टिफाई करना है इस आंसर। डू यू प्रेफर टू वर्क अलोन और डू यू प्रेफर टू वर्क एज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप? एक क्वेश्चन और पूछ, जैसे आप कंपनी में जाएंगे, कहीं और भी जाएंगे, ये क्वेश्चन कॉमन है कि क्या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या आप ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं? तो दोनों चीजें हैं देखो इसके अंदर, कि एक तो एक आदमी अकेले काम करे ये भी बेटर नहीं, ठीक? और एक आदमी सिर्फ क्या मैं ग्रुप में काम करता ये भी बेटर नहीं। उससे उसकी पर्सनालिटी में फर्क पैदा हो जाए, एक निशान यानी ऑब्जेक्शन है। ये आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, so just we have see this in the slide, double edged sword, you know, दो धारी तलवार। वर्क alone could be self starter, वर्क in group could be team based, both attributes। आप दोनों चीजें बताइए कि मैं दोनों चीज कर सकता हूँ, वर्क alone भी कर सकता हूँ और ग्रुप वर्क भी कर सकता हूँ, और फिर दोनों के एट्रीब्यूट्स बताइए, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या क्या खुसूसियात हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है बेसिकली वो बताइए, कि अकेले काम करने का क्या फायदा है और ग्रुप में काम करने का क्या फायदा है। ये दोनों चीजें उसके हमें बेनिफिट्स बताने होंगे। Therefore, we prefer both work alone or work as a part in the group. Now another question, what do you know about your company? आप इस कंपनी के बारे में कहाँ से जानते हैं, क्या क्या जानते हैं इस कंपनी के बारे में? अब किसी कंपनी में गए, किसी कॉलेज में गए, किसी यूनिवर्सिटी में गए, किसी ऐसी जगह जगह इंटरव्यू देने का, आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? इसलिए पहले ही मैंने कहा कि लेट अस सी, रिसर्च द कंपनी, रिसर्च द कॉलेज, आप इसको सर्च करिए। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब कुछ जानिए उसके बारे में, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई। अच्छा, ये चीज़ ऐसी है जो आदमी को याद नहीं रहती, इसलिए इसका भी एक हल्का सा नोट्स बना लेना चाहिए। जहाँ जा रहे कंपनी उसको 3-4 बार पढ़ ले आदमी, उसको फिर थोड़ा मेमोराइज कर ले, ओके, मेमोराइज कर ले और जहन में रखे कब कंपनी बनी, क्या बनी, उसके पहले एचआर कौन थे, उसका सीईओ कौन है, उस कॉलेज का जो है फाउंडर कौन है, उस कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, वाइस प्रिंसिपल कौन है, उस कॉलेज का ट्रस्टी कौन है, उस कॉलेज का जो है और जितने सारे हेड कौन है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, उसका कितना कैंपस है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने फैकल्टी मेंबर है, कितने नॉन टीचिंग है, कितने टीचिंग है, इन्स एंड आउट्स वी शुड नो। One should know ins and outs of that particular company, particular college. Okay? Use company research. Why are you interested in working for this company? आप इस कंपनी में क्यों, मैंने कहा नहीं कि जैसे एक हमारे फ्रेंड ने बताया कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, कॉमन क्वेश्चन, why are you interested in this company? So how to defense this? कैसे आप इसका डिफेंस करें? How to justify this? जस्टिफाई कैसे करें? तो आपको अपने अंदर जो क्वालिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके थ्रू आपको बताना है कि मैं इस कंपनी में इसलिए इंटरेस्टेड हूं कि ये चीज, आपके जो स्किल्स हैं वो उसको रिलेट करिए इस कंपनी के नीड्स से, इस कंपनी के रिक्वायरमेंट्स।
इस कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है और मेरे अंदर स्किल है, तो थ्रू आवर स्किल वी कैन डेवलप दिस कंपनी, योर कंपनी, वी कैन प्रोग्रेस योर कंपनी। हम अपने स्किल के थ्रू आपकी कंपनी को प्रोग्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर वी आर इंटरेस्टेड ओवर हियर। हाउ डज दिस पोजीशन फिट इनटू योर फ्यूचर प्लान्स? Where do you see yourself in 3 years? This is very important questions. कि आपको किसी पोजीशन पर रहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान क्या है, कॉमन क्वेश्चन। और 3 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये भी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछा आपको समझ ले लिया, प्लीज लेट मी 2 मिनट्स, ओके, जहाँ 2 मिनट थोड़ा सोचिए इस पोजीशन पे फ्यूचर प्लान क्या, तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, क्या जवाब? डिमोन्स्ट्रेट एम्बिशन, पोटेंशियल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपका टारगेट क्या, एम्बिशन क्या, आपकी पोटेंशियल जो है, उन सब चीजों को करके कि 3 साल के अंदर हम आपकी कंपनी को कितना फायदा पहुंचाएंगे। आपकी कंपनी यहां होगी और मैं यहां हूं, थ्रू आवर स्किल्स, आवर क्वालिफिकेशन, आवर क्वालिटीज, योर कंपनी ओवर 3 years will be over here and I will be here। ये दोनों चीजें हम बता दें कि मैं यहाँ हूँ, कंपनी आती है। 3 साल में मेरी प्रेस रिपोर्ट यहाँ तक, 3 साल में कंपनी यहाँ तक, आपका कॉलेज यहाँ, जैसे कोई रिसर्च स्कॉलर, डॉक्टरेट, किसी कॉलेज, whenever they come to the college to get the interview or get the job, बताए 3 साल में इतने प्रोजेक्ट आ जाएंगे, मेरे पास एजेंडा प्रोजेक्ट इतना लाने का, इतने स्टूडेंट आ जाएंगे, इतना काम कर लेंगे। देयर आर सो मेनी। ओके, इन ए जॉब व्हाट इंटरेस्ट यू मोस्ट और लीस्ट? जॉब में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है और सबसे कम किसमें इंटरेस्ट है? तो दोनों चीजें पैरेलल बतानी है, जितना मोस्ट को बताना उतना ही लीस्ट को बताना। पोजीशन के थ्रू हमें रिलेट कर देना है, ओके, कि पोजीशन पर किसकी रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा होती वो चीज बतानी है और कितनी कम होती वो बतानी है। ओके, किसकी चीज जरूरत किस पोजीशन पे क्या होती। कोई आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर पे आया, उसकी जरूरत मोस्ट, उसका जो इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए सबसे ज्यादा फोकस, और सबसे कम कहाँ होना चाहिए। इसी तरीके से किसी कंपनी में जॉब मिल गया आपने, तो वहां पर उसका इंटरेस्ट मोस्ट कहाँ होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें और सबसे कम किसमें होना चाहिए। हाउ डू अदर्स डिस्क्राइब यू? आपको लोग कैसे बयान करते हैं, कैसे बताते हैं आपके बारे में? पर्सनल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एट्रिब्यूट्स। तो आप क्या बताइए? पर्सनल ट्रेट्स बताइए, अपनी स्पेशलिटी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एडजेक्टिव, ये सारी चीजें बताएं। कोई अगर कंपनी इंटरव्यूअर आस्क दिस क्वेश्चंस, now what are the common mistakes happen deadly during the interview? That is, we should careful about these things. Arrives late for the interview. I told you already that arrive late for the interview, bad impression. First impression is the last impression. Indicates he is late because the directions he was given were not good. जब उससे कोई पूछ रहा है कि क्यों लेट हुआ, कह रहा है कि जो डायरेक्शन बताया था वो सर थोड़ा दूर का था, वो समझ में नहीं आया, वो सही नहीं था, सही डायरेक्शन नहीं था। लुक्स डिशेवल्ड एंड इनएप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। अच्छा देखिए, तीनों चीजें कनेक्टेड है। जैसे आप लेट हो गए, आपकी जो हुलिया है ना वो सब बदल जाती है। डिशेवल्ड मतलब आपका कपड़े इधर उधर हो जाएंगे, आपका जो फेस है उसके ऊपर एक अलग रिंकल्स टाइप की चीजें, मतलब एक अलग एक्सप्रेशन आने लगेगा, जैसे परेशान हाल है आदमी, ड्रेस इधर उधर हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे। ओके, ऑल द थिंग्स आर ऑर्डरलेस, डिसऑर्डरनेस का शिकार हो जाती है सारी चीजें आदमी की। इसलिए जब टाइम पर पहुंचेगा वो सारी चीजें अपने वक्त पे करना शुरू कर। स्लाउचेज इन सीट, बैठा है, मैंने पहले बताया पहली चीज है स्लाउचेज इन सीट, ये चेयर पे बैठा है, स्लाउचिंग पोजीशन, टेक लगा के बैठा हुआ है, नॉट बेटर। द इंटरव्यू डज नॉट मेंटेन गुड आई कांटेक्ट विद इंटरव्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। The one should having a eye contact continuously with his interviewer, okay? Rather than one is seeing here and there whatever the things are available in the scene, okay? सारी चीजें जो रखी है उसको देख रहा है तो ये चीज नहीं, हमेशा eye contact continuously with the interviewer. Agents will find out about the company in the interview. Ask interviewer, what do you do here? ऐसा नहीं कि आप पहुंचे और आपने पूछा कि कंपनी के बारे में कि
जो आपसे इंटरव्यू उसी से पूछना है कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो फिर आप क्यों आए इंटरव्यू देने के लिए? आपको तो मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी में मैं क्या हूँ। आपने सर्च करके इसका मतलब नहीं आया, इसलिए आपको मेरे बारे में नहीं मालूम है कि मैं क्या हूँ, और कंपनी के बारे में नहीं मालूम, कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। डज नॉट लिंक व्हाट ही कैन डू विद द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर। कभी भी आप ये मत बताइए कि नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर को लिंक मत करिए, वो क्या करता है और उसके एम्प्लॉयर की ज़रूरत क्या है, इसको लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंटरव्यू देने हैं, इंटरव्यू देंगे, ओके। ब्रैग्स अबाउट हाउ ग्रेट ही इज बट साइट्स नो एविडेंस। यानी आप अपने बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बताइए कि मैं यूं हूँ और मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देयर आर सो मेनी। ब्रैग्स कहते हैं शैखी बघारना, अपने बारे में खूब आदमी तारीफ कर रहा है, okay, but there is no evidence available in the resume, okay, to reflect your these type of brags। आपकी सारी चीजें कुछ दिख नहीं रही आपके रिज्यूमे से, बट यू आर जस्ट कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट योर पर्सनालिटीज, ओके। another responses have no clear, seem disorganized and rambling। यानी जो जवाब हम दे रहे हैं वो फोकस नहीं है उसके ऊपर। जैसे किसी ने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने कहा जी आई एम दिस, I belong to this, and I passed PhD this, and I have done job this and so on so forth। यानी जो पहले बताना उसको बाद में बताना है, जो बाद में बताना उसको पहले बताना है। There are all the things are disorganized and random। कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं, डिसऑर्गेनाइज्ड, और उसका कोई फोकस नहीं है कि आप यहाँ क्यों कंपनी में आना चाहते हैं। हाँ? इसका फोकस होना चाहिए। Is low key, does not project enthusiasm nor appear to want the job। What are you going to do for me attitude। अगर वो नहीं लेना चाह रहा है, उसका जो इंटरव्यूअर है, तो ऐसा नहीं कि अपने मोटिवेशन को डाउन करना है, बल्कि हमें इंथ्यूसियस्ट होना है और बताना है कि मैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर मी टू एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड से बताना है कि मैं जो करने जा रहा हूँ यहाँ जॉब, आई एम द बेटर वन। Answers most question with short yes and no। कभी भी इंटरव्यू में सिर्फ यस और नो, ये दो लफ्ज हमेशा नहीं बोलना चाहिए। आपको बात पूरी एक्सप्रेस करनी है, बतानी है चीज़ों को। यस और नो नहीं बतानी है। ये चीज़ अच्छे इंप्रेशन के लिए नहीं होती इंटरव्यू में। एज डिस्परेट फॉर ए जॉब, एनी जॉब। कभी भी इतना आदमी वो डिस्परेट ना हो जाए कि मुझे बस चाहिए किसी तरह मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए मैं कर लूँगा। नो नो, इट्स नॉट ए बेटर। You should prepare your qualification according to qualification। you require to job। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें जस्टिफाई करना है कि मैं जॉब के लिए, okay? ये बताने कि कोई भी मिल जाए हम ले लेंगे, इट्स नॉट बेटर। Calls the interviewer by his first name repeatedly or use the wrong। इंटरव्यू का नाम ले रहे हैं तो उसका नाम लेकर के पुकारा है, पहली मुलाकात, पहली बार मिलना होगा। नॉट कॉल टू फर्स्ट नेम। आपने नाम बताया, पहला नाम, ओके। जैसे कोई when you come in the interview and the interviewer come to Rahul, it is not better way। और कोई और नाम लेके कॉल कर लिया जो उसका नाम नहीं था, that is not a good। Bad boss is former boss and the company। आप किसी कंपनी में जॉब करके इस कंपनी में दूसरे कंपनी में आए, तो जो फॉर्मर कंपनी है, जो आपके पास जिसमें आप पहले जॉब कर चुके थे, जिस कॉलेज में आप जॉब कर चुके थे, उस कॉलेज की बुराई नहीं करनी है। उसको क्या मतलब आप कहाँ से आए, उसको तो कैंडिडेट से मतलब है, आपकी कंपनी और आपके बॉस से कोई मतलब नहीं है। सो डोंट डिस्कस अबाउट द बॉस, फॉर्मर बॉस एंड द पर्टिकुलर कॉलेज एंड कॉलेज फ्रेंड्स। जस्ट नॉट डिस्कस, डू नॉट डिस्कस दिस थिंग्स। किड्स मेमोराइज रिस्पॉन्सेस एंड फॉरगेट थॉट्स। रटा रटाए जवाब दे रहे हैं। कुछ चीज़ें तो देखो रटने वाले का इंट्रोड्यूस, इसे बिल्कुल याद करके जाना चाहिए क्या बोलना है, क्योंकि हमें 30 सेकंड्स में अपने इंट्रोडक्शन करा देने चाहिए। 30 सेकंड से सफिशिएंट। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल कहते हैं रीड बाय हार्ट होनी चाहिए। हर चीज़ का जवाब रटा रटाया नहीं, फिर उसको सोच करके समझ करके उस वक्त ना टाइम ले करके फिर एक्सप्रेस करनी है और रिलेट करना है जहां भी जा रहे हैं हम, कि हम आपको क्या बेनिफिट पहुंचाएं। आस्क आई एम डूइंग, आर यू डूइंग टू हायर मी। कभी मत पूछिए इंटरव्यू से कि सर मैं कैसा कर रहा हूँ इंटरव्यू में। नो नो, इससे क्या लेना देना है इंटरव्यूअर को, कि सर क्या आप मुझे ले रहे हैं। इट्स नॉट ए क्वेश्चन टू आस्क इंटरव्यूअर। ये कोई क्वेश्चन नहीं होता इंटरव्यूअर से, उसको क्या मतलब कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। हम तो परफॉर्म करने आए हैं,
हम जज करवाएंगे इनसे, हम पूछेंगे नहीं. Now interview has been done. Interview हो गया. One of the things also I just include in resume, you should know कि resume जब बनाइए तो उसके अंदर आप अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री वाली रिज्यूम बनाना. सारी चीज़ें मेंशन नहीं की जाती, बस हाईलाइट. वो भी एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का कि हाउ टू मेक ए रिज्यूम. नाउ आफ्टर इंटरव्यू some points have to remember in ever. रिव्यू एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस. हमेशा कुछ चीज़ें इंटरव्यू के बाद आप सोचिए, उसको रिव्यू करिए कि मैंने जवाब कैसा दिया. अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचिए. उन्होंने कहा ब्लैक बोर्ड पर जाकर पढ़ाइए, आपने पढ़ाया तो कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर था, उसको नोट करिए. और फिर मॉडिफाई करिए. आपने इंट्रोडक्शन दिया तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या दिया. देखिए हर इंटरव्यू के बाद एक असेसमेंट, एक अपना असेसमेंट होना चाहिए ताकि आप इम्प्रूव करें और उसको मॉडिफाई करिए. जो आपने इंट्रोडक्शन इस बार दिया अगली बार नहीं दी. Okay. I just told you, I want to tell a story. One of my friends, he has interviewed, I think that he interviewed 30 times in different colleges and universities. After more or less 24 or 30 interviews, maybe he made a notes basically containing more than 100 questions. All the questions had memorized by that person, by our friend. And one of them, maybe one of the college, वो एक कॉलेज में गया और फिर जो है इंटरव्यू दिया. कहा कि जो सारे क्वेश्चन मैंने रख रखे थे जमा करके, जितने इंटरव्यू में पूछा गया था 25-30 इंटरव्यू में, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन थे. वो सब का जवाब मैंने फौरन दे दिया. Okay? And he has been selected. Okay? So this is very important part after the interview to analyze and review the performance. Okay? Send a thank you note to the manager immediately after the interview. Don't put this on. आप फौरन क्या करिए, किसी कंपनी का इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं, किसी को तो फौरन एक हल्का सा मेल कर दीजिए, नोट थैंक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा. ओके, एंड आई विश दैट आई एम द एलिजिबल कैंडिडेट, आई विल बी द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन. ये सब चीज़ लिख करके हल्का सा मेल कर दीजिए. और मेक ए रिटर्न विजिट और टेलीफोन कॉल 2 or 3 days आफ्टर योर इंटरव्यू. यानी तो अगर 2-3 दिन के बाद आप विजिट करना चाहें कि भाई क्या हुआ इंटरव्यू के बाद, क्या होगा, सिलेक्शन लिस्ट निकल गई नहीं निकल गई. बट इन दिस नाउ डेज लिस्ट हैज बीन displayed the website also, तो कुछ डिस्प्ले भी हो जाता है. बट गए टेलीफोन कर लिया हमने, ताकि भाई इसके अंदर जो रिजल्ट आया यस और नो, देन वी विल अगेन रेडी, वी हैव टू प्रिपेयर नेक्स्ट इंटरव्यू. तब हम अगले इंटरव्यू के लिए तैयार हो. नाउ thank you. If any queries, then let me know. Yes sir. Yes sir. Thank you very much, Dr. Adil Nadeem sir. Very thankful to you. Now it's time to represent the vote of thanks. Now I would like to request Professor Rahim Sheikh to present the vote of thanks for today's webinar. Professor Rahim Sheikh, over to you, sir. Thank you so much, Abdullah sir. I am really thankful to Dr. Ragil Nadeem sir for today's lecture. This session was really wonderful, and I have no doubt that all the details that sir has given to us regarding the interview is going to benefit to all the students of our college. Sir has told us to that from beginning of the interview and how we should enter the interview, how we face that interview, and how should the appearance of the male candidates and female candidates also. The question answer sessions, how we introduce ourselves to the interviewer, how we answer their questions, and all the small details sir has given to us regarding the interview. And afterwards, when the interview has finished, how the self-assessment we should make
for the further progress of our interview skills. So all these things are going to really helpful for the students, and I hope all the students and participants who have joined in this webinar is going to get some knowledge, and this seminar is going to be fruitful for them. And I am also thankful to Dr. Shakib Ahmed sir for their welcome note in this webinar. And I am also thankful to the organizing committee of Computer Exam and Career Counseling Cell for organizing this webinar for the students for the development of their interview skills. And I am at the end, I am really thankful to Dr. Raghu Najim sir. Thank you so much for your presence in this webinar and inviting all of us for the interview skills. Thank you so much, Raghu sir. Thank Over you. to you, Abdullah sir. Thank you very much, sir. I would like to thank Dr. Raghu Nadeem sir again, once again, sir. We have shared a very informative session with us. Now it's time to declare the end of the program. So I would like to declare the end of this program. Thank you, and thank you very much to all the participants who have joined this webinar, and especially to our honorable keynote speaker, Dr. Raghu Nadeem sir. Thank you, sir. Thank you very much.